Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues, certain important topics related to sociology optional dear friend. And generally we discuss those issues dear friend that are mentioned in your syllabus through this channel of Center for Sociology. But today we are going to discuss one very important issue dear friend, that is issue of war. And is there any sociology behind war? As we have already discussed, that sociology is one such subject, dear friend, with which you can analyze, with which you can explain, or with which you can get a new insight about various phenomena, various events that are taking place around you. In fact, we have discussed repeatedly that behind everything that you are witnessing, there is some sociology. Behind everything, dear friend. And in that context, when you see that frequent wars are taking place in global world on various issues, dear friend, is there some sociology behind war, or what exactly is sociology of war, and how various sociologists they have discussed, they have deliberated from sociological imagination that why war takes place, what kind of the consequences it will create for society as an individual. All these things we shall try to discuss in this particular class dear friend. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ होगा जहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे different perspectives on war dear friend. But before starting this session, there is some basic information about me dear friend. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching sociology optional since last more than 1 decade. And if you have been preparing with sociology optional for UPSC examination, you can connect with me through these social media platform. और आपके देखिए जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए वाई वॉर टेक्स प्लेस. ऐसा क्यों होता है कि देर आर सर्टेन वॉर्स इन विच इमीडिएटली यू विल फाइंड सीज फायर हैज टेकन प्लेस, बट देर आर सर्टेन वॉर इन विच यू विल फाइंड दैट दीज वॉर्स आर गोइंग ऑन since last 1, 2 or even 3 years. So war between Russia and Ukraine, a small war that took place recently between Iran and Israel, or some armed conflict that took place between India and Pakistan in recent months, dear friend, it has created lots of curiosity. As a student of sociology, you have always tried to know that why war take place. War होती क्यों है, इसके reasons क्या हैं, इसके consequences क्या हो सकते हैं at level of society, that is macro sociological level. At the same time, dear friend, at the level of individuals and especially those who get involved in war, these soldiers, their family members. So कैसे ये इसे अफेक्ट करता है, इस बात को हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे इन दिस सेशन डियर फ्रेंड. सो ये रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि बहुत सारे आर्म कन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन और अमंग कंट्रीज डियर फ्रेंड. एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, recent conflict between India and Pakistan, number of other conflicts that are going on in different part of the world, or most recent conflict that is started between Iran and Israel, dear friend. So let's try to understand from sociological imagination that what is war, dear friend, not from your current affairs point of view. So the current affairs point of view say definitely you might be having some idea about why such conflict took place between Israel and Hamas, Israel and Iran, why conflict is going on between Russia and Ukraine, why recent conflict took place between India and Pakistan. करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपने इसको पढ़ा होगा, बट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सो देखिए वॉर एज अ फिनोमिना, जैसा कि हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया वाइल टॉकिंग अबाउट एमिल डर्किंग, दैट वाइल स्टडीइंग एनी सोशल फैक्ट, first you should define what exactly that social fact. So war as a social fact, dear friend, it is different from any other form of violence. किसी और form of violence से war is different, dear friend. हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया construction of social reality, that how you construct social reality, dear friend. So war is actually an organized armed conflict between or among states, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जब कोई ऑर्गेनाइज आर्म कन्फ्लिक्ट होता है, दैट काइंड ऑफ द आर्म कन्फ्लिक्ट इज नोन एज वॉर, नॉट एनी अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस.
किसी भी तरह की वॉयलेंस को आप वॉर नहीं करेंगे दोस्तों। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, आर्म कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग स्टेट्स, कंट्रीज, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पर आप पाएंगे कि डिसिप्लिन आर्म फोर्सेज आर इन्वॉल्व, सम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल्स आर देयर, जिसके लिए स्टेट्स आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं। पर जब भी देखिए वॉर होती हैं सो लार्ज स्केल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मोबिलाइज किया जाता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग दैट वॉर एज अ सोशल फिनोमेना इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ वॉयलेंस डियर फ्रेंड इन सोसाइटी। तो पहला तो ये कि देखिए जब आप वॉर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉजिटिविस्ट ये बोलते हैं कि स्टडी ऑफ एनी सच सोशल फैक्ट शुड बी एज डिफिनेटिव एज पॉसिबल। सो एन ऑर्गेनाइज आर्म कन्फ्लिक्ट between or among states that involve organized armed forces, ideological as well as some political goals and mobilization of resources. Definitely, जब भी वॉर होगी रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। सो सच काइंड ऑफ फिनोमेना इज नोन एज वॉर डियर फ्रेंड। और देखिए ये जो वॉर होती है, ठीक है, हमने आपके साथ दो तरह के पर्सपेक्टिव डिस्कस किए, मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो देखिए सिंस स्टेट्स आर इन्वॉल्व, societies are involved, definitely whenever war will take place it will have certain consequences at the level of what, state, at the level of society, nation state के level पर कुछ consequences होंगे war के, that is aspect of macro sociological perspective. But at the same time those who are involved in war, soldiers, their family members, उनके लिए भी देखिए वॉर के क्या होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव डियर फ्रेंड। और फिर देखिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग लोगों ने वॉर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डेफिनेटली हमने आपके साथ जब फंक्शनलिस्ट के बारे में बात की थी तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि फंक्शनलिस्ट का मेन कंसर्न क्या होता है, दैट हाउ दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सम फंक्शन फॉर सोसाइटी। एंड आर.के. मर्टन ने बोला था कि देखिए एनी सच थिंग दैट मे हैव सर्टेन फंक्शंस, सर्टेन डिसफंक्शंस ऑल्सो कैन बी देयर। सो फंक्शनलिस्ट का कहना है कि देखिए वेन एवर वॉर टेक प्लेस, जब भी वॉर होता है देखिए आपका जो इंडिविजुअलिज्म है ये बैक सीट ले लेता है। यू थिंक अबाउट कंट्री, यू थिंक अबाउट नेशन डियर फ्रेंड। सो वेन एवर वॉर लाइक सिचुएशन विल इमर्ज, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, इट विल इंक्रीज। ये बात समझ पा रहे हैं, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी आप इस बारे में भूल जाएंगे कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग पुअर हैं, आप इन बातों को लेकर ज़्यादा एक प्रोपागेंडा, एक तरह का नैरेटिव चलेगा कि नेशन फर्स्ट, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो जब भी देखिए वॉर होगी, फंक्शनलिस्ट का कहना है कि इन सिचुएशन ऑफ वॉर नेशनलिज्म विल इंक्रीज, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन विल इंक्रीज। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स हैं, कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का कहना है कि देखिए पहली बात तो जो ये वॉर होती हैं ये इस वजह से होती है जब लोगों के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कंट्रीज़ के स्टेट इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज को लेकर कोई कंपटीशन हो रहा है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि देखिए वेन एवर वॉर टेक प्लेस रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होगा, आपके पास जो भी सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है आप वॉर के लिए एलोकेट करेंगे। तो सोसाइटी में जो गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। That is how conflict scholars they analyze situation of war. वही जो देखिए symbolic interactions है, हमने आपके साथ डिस्कस किया that symbolic interactions they are basically focusing on interactions. They are trying to develop an idea about symbols. So the kind of bloodshed that will be created through war, death will take place. These coffins that you are able to see on this screen. So देखिए ये कुछ सिंबोलाइज कर रहा है। सो वॉर क्रिएट्स ए न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शंस। बट देखिए मुद्दा ये है कि वाई वॉर टेक प्लेस, सोशियोलॉजिकली वाई वॉर टेक प्लेस, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टेरिटरी को लेकर आपकी कुछ ग्रीड हो सकती है। देर आर सर्टेन रीजंस ऑफ यूक्रेन दैट माइट बी रिसोर्स रिच, इस वजह से रशिया को लगता हो कि दैट पार्ट शुड कम विद इन रशिया, और प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इंटरेस्ट रशिया को ये लगता होगा कि इफ यूक्रेन विल ज्वाइन NATO देन द सिक्योरिटी बैलेंस इन दैट रीजन परहैप्स इट विल गेट डिस्टर्ब।
सो देयर माइट बी एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच वॉर टेक प्लेस। कई बार कंट्रीज की पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, लाइक यूएस की एक हेजमनी है, यूएस को लगता है कि चाइना परहैप्स में थ्रेटन दैट हेजमनी इन फ्यूचर, सो यूएस माइट बी सपोर्टिंग ताइवान while China says that it is against our sovereignty, but US is saying कि we will be protecting Taiwan, Taiwan is asserting itself. So sociologically you will find that whenever war takes place, states are involved, societies are involved, dear friend, individuals might be involved, so there might be state, there might be armed forces, there might be society. So all these things are involved whenever war takes place. और ऐसी जो भी वॉर होती है दोस्तों, ये अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ी जा सकती हैं। आइडियोलॉजिकल रीजंस होते हैं, ईरान को लगता है कि इजराइल जो कि एक ज्यूस कंट्री है, उनको कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का इन दिस अरब वर्ल्ड। इजराइल का कहना है कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहे हैं इफ ईरान विल हैव सम न्यूक्लियर वेपन। So there might be some ideological interest, there might be some political goals, there might be some territorial dispute, जिसकी वजह से देखिए वॉर होती है। बट देखिए whenever war takes place, sociologically when we analyze any phenomena, we try to see it from various dimensions. In fact, sociology as a subject, it tries to cover multiple dimensions. Any phenomena, according to Max Weber, any phenomena, dear friend, it might have number of causes, कॉजल प्लूरलिज्म की हमने आपके साथ बात की है, एज वेल एज इट माइट हैव नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। वेन एवर वॉर टेक्स प्लेस डियर फ्रेंड, आप बहुत सारे रिसोर्सेस वॉर के लिए एलोकेट करते हैं। कंट्री अपना जो नॉर्मल रिसोर्स एलोकेशन होता है उससे हटकर वॉर की सिचुएशन में बहुत सारे रिसोर्सेज आप क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। और देखिए ऑलवेज देयर विल बी ए कॉस्ट ऑफ वॉर, देयर विल बी ए कॉस्ट ऑफ वॉर। सो व्हेन वॉर बिटवीन Israel and Iran was going on, everyone was counting कि ये जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, how much it costs per day, it costs this much. Similarly for Iran also. So there will be cost of war. It will contribute towards inflation in society. First World War, Second World War के बाद आपने देखा किस तरह की सिचुएशंस जनरेट हुई। पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप देखें, सोशल लेवल पे अगर आप देखें, तो ऑलवेज whenever war will take place, death will take place, bloodshed will take place, loss of human life will take place, dear friend. And such loss of human life, whether a male soldier or a female soldier or even civilian population, they are dying, definitely it will lead to fragmentation of what? Family. Family का breakdown होगा, family का fragmentation होगा दोस्तों। large scale migration होता है when war take place। अभी हम देख रहे थे, देखिए ईरान और इजराइल के बीच में जब इस तरह की सिचुएशन थी, so people in large number they were migrating। कई बार इट विल गिव राइज टू अ रिफ्यूजी क्राइसिस, डियर फ्रेंड, रिफ्यूजी क्राइसिस। और जब लार्ज नंबर में रिफ्यूजीज आपकी टेरिटरी में रहेंगे, इट माइट लीड टू व्हाट? कल्चरल इरोजन ऑल्सो। सो व्हेन मेन विल डाई, women will come out, they will start participating in economic domain. So these can be social consequences of war, dear friend. पॉलिटिकल लेवल पर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कैसे पाकिस्तान ने देखिए इनको प्रमोट कर दिया, एक पॉलिटिकल हीरोइज्म। ऑन द अदर एंड इंडियन मीडिया दे ऑल्सो ग्लोरीफाइड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, डियर फ्रेंड, दैट अंडर हिज एबल लीडरशिप इंडिया हैज डन दिस थिंग दैट थिंग। करारा जवाब दिया हमने। तो इस तरह की बातें आप करते हैं, पॉलिटिकल हीरोइज्म होता है जब आपको लगता है कि ये जो वॉर थी आपके लिए फेवरेबल थी, आपने कुछ अचीव किया, देन इट विल लीड टू पॉलिटिकल फेवरिज्म। बट व्हाट इफ war could not produce favorable consequences, dear friend? It may lead to degradation of political elite, dear friend. Saddam Hussein के केस में आप देखें, how Saddam Hussein after this frequent war in Iraq, when he tried to capture Kuwait, dear friend, that loss finally led to degradation of Saddam Hussein. Recently in case of Iran, dear friend, how political authority of supreme leader, it might deteriorate, and that's why a new rhetoric they have been creating that Iran won this particular war, बहुत सारे losses के बाद भी। So that can be political impact. अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग स्कॉलर्स ने वॉर लाइक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। डरकीम का कहना था दोस्तों कि देखिए जो वॉर है एक्चुअली इट इज़ अ नॉर्मल सोशल फैक्ट, वॉर इज़ अ
नॉर्मल सोशल फैक्ट, एंड हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया दैट ए सोशल फैक्ट इज नॉर्मल व्हेन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स समथिंग फॉर सोसाइटी favorably, utilitarian for society. So whenever war like situation will take place, it will contribute towards nationalism, patriotism, collective conscience. तो सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी है, सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन है, दैट विल इंक्रीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर. वही मैक्स वेबर का कहना है कि देखिए सिंस स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज वॉयलेंस, तो वॉर होती हैं ये स्टेट के इस राइट को लेजिटिमाइज करती हैं. दैट स्टेट हैज राइट टू यूज वॉयलेंस. सी राइट मिल्स डियर फ्रेंड, वी हैव डिस्कस दैट सी राइट मिल्स का कहना है कि देखिए वॉर क्रिएट्स अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. वॉर का जो फायदा होता है ये इस दौरान, वॉर के दौरान में मिलिट्री और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनके बीच में एक नेक्सस क्रिएट होता है, एंड वेरी ऑफन दैट में लीड टू वॉर डियर फ्रेंड. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट. सो यूएस इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 21 ईयर डियर फ्रेंड, और यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इराक, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि इट वॉज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डियर फ्रेंड. वहीं देखिए एक स्कॉलर है चार्ल्स तिल्ली, इनका कहना है देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दैट यू आर एबल टू विटनेस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स दे हैव बीन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर. वॉर टुक प्लेस एंड रिजल्ट ऑफ दोज वॉर majority of the states that you have been witnessing today, they have been created. So wars create states, later on states they create war. That is how Charles Tilly tried to explain war from sociological perspective. So I hope कि देखिए the way we have been discussing various other topics of current affairs, you might have developed a good understanding about a sociological perspective on war that you might use in your examination dear friend, especially those who are going to appear in 2025 mains examination. So if you have been preparing for civil services dear friend, और सोशोलॉजी ऑप्शनल को एक बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप अगर समझना चाहते हैं, सो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू सोशोलॉजी फाउंडेशन बैच फ्रॉम 5 जुलाई. इस कोर्स को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप अपनी कॉल कर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. Thank you to all dear friends for joining me and for staying with me. Thank you.